بارش کے باعث بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہونے کا خدشہ ہے۔ 8 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے بلدیاتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بارش کے جمع پانی کی وجہ سے پولنگ سٹیشنز قائم کرنا دشوار ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں بارش متاثرین کے کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے وفاق کو رپورٹ ارسال کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ بدھ کے روز صوبائی الیکشن کمیشن التوا کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ملیر، سجاول، جامشورو، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا، گوٹکی اور دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے خطوط لکھ بھی دیے ہیں۔ مذکورہ اضلاع میں پولنگ اسٹیشنز قائم کرنا مشکل ہے۔ تعلیمی اداروں میں برساتی پانی کے جمع ہونے کی بھی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ بارش کے باعث بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ 8 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے بلدیاتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بارش کے جمع پانی کی وجہ سے پولنگ اسٹیشنز قائم کرنا دشوار ہوگا، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بارش متاثرین کے کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے صوبائی الیکشن کمیشن نے بھی وفاق کو رپورٹ ارسال کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ایم کیو ایم کے وسیم اختر کہتے ہیں سڑکوں کا برا حال، کراچی کے شہری خوار ہو رہے ہیں۔ شہر کے لوگوں کو جائیداد کے ٹیکس کو معاف کیا جائے، سیلاب سے متاثر افراد کو سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ کراچی کی تمام اضلاع میں شہریوں کو فوری ریلیف دیں، قدرتی آفات سے پورا کراچی متاثر ہوا ہے۔ وسیم اختر نے مزید کیا کہا کہ این اے 245 میں شکست کو تسلیم کرتے ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ 5 لاکھ کے حلقے میں جیتنے والے امیدوار نے صرف 25,000 ووٹ لیے ہیں۔ اتنی بڑی سڑکیں ہیں اور چھوٹی سڑکیں ہیں گلیوں میں، وہ موٹربل نہیں رہی۔ سیوریج سسٹم ان بارشوں کے بعد ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے۔ کراچی کا سیوریج سسٹم آپریٹیبل نہیں ہے، نہ کام کر رہا ہے۔ اولڈ سٹی میں مغرب کے بعد گھروں میں گٹر کا پانی ہوتا ہے۔ اسٹارم واٹر ڈرینز ٹوٹل ختم ہو چکے ہیں، جنہیں نالے کہتے ہیں ہم کراچی کے۔ جتنی مارکیٹس ہیں اس میں گاہک تو بہت دور کی بات ہے، دکاندار اپنی دکانیں نہیں کھول سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کھول بھی لیتا ہے تو وہاں گاہک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیفیت ہے سارے ٹریڈنگ ایریاز کی کراچی کی۔ مسجدوں کے اندر بھی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہے اس کا وہاں پہنچ۔ اب ہماری ریکویسٹ سی ایم صاحب سے جو ہے، جو کہ میں نے رکھی ان کے سامنے، کہ یہ ٹیکسز کراچی کے بھی معاف کیے جائیں۔ آپ کو بتائیں کراچی کے بس ڈرائیور شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے ہیں۔ آج جیل روڈ پر حادثہ کیسے پیش آیا، فوٹیج سٹی 21 نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ حادثہ 4 بسوں کے درمیان ریس لگانے کے دوران پیش آیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے بس ڈرائیور شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے ہیں۔ آج جیل روڈ پر حادثہ کیسے پیش آیا، فوٹیج 21 نیوز پر۔ حادثہ 4 بسوں کے درمیان ریس لگانے کے دوران پیش آیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں یہ فوٹیج آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 4 بسوں کے درمیان جو ہے وہ ریس لگی تھی، جس کے دوران جو ہے یہ ہولناک جو ہے حادثہ پیش آیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ جی سعود، آگاہ کیجیے گا، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ڈرائیور کی؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی میں بس ڈرائیور معصوم شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے ہیں۔ آج صبح یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کی CCTV سامنے آئی ہے۔ پہلے 3 بسیں ایک دوسرے کو جو ہے پیچھے سے تیزی سے نکلی اور اس کے کچھ فاصلے پر موجود جو چوتھی بس تھی اسی تیزی سے جو ہے جیل کی جانب دوڑتی نظر آتی ہے، اور اچانک سے بس بے قابو ہو کر جو ہے فٹ پاتھ پر ٹکرانے کے بعد درخت سے ٹکرائی اور اس کے بعد جو ہے الٹ گئی تھی، جس میں تقریباً 10 افراد زخمی ہوئے تھے، جس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اس واقعے کے بعد جو بس ڈرائیور تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو غفلت برتنے والا ڈرائیور ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود۔ حکومت سندھ نے ڈائریکٹر سیکنڈری اسکولز کراچی شاہد زمان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور چیف سیکریٹری سندھ سہیل راجپوت نے منظوری دے دی ہے۔ ڈائریکٹر سیکنڈری پر کروڑوں روپے کا فرنیچر خریدنے کا الزام ہے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔
डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल का सेक्रेटरी तालीम सिंध को खत। डायरेक्टर सेकेंडरी कराची पर करोड़ों की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। करोड़ों का फर्नीचर खरीदा लेकिन स्कूलों में तकसीम नहीं किया। खत के मुताबिक 44 मिलियन रुपए के फर्नीचर की खरीदारी का ठेका भी मनपसंद ठेकेदार को दिया गया। 11,000 रुपए के डेस्क की बोली देने वाले ठेकेदार के बजाय 13,000 रुपए में डेस्क खरीदने का टेंडर मंजूर करके सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मामला सेक्रेटरी और वजीर तालीम के इल्म में आने के बाद महकमाती तहकीकात का फैसला किया गया। वजीर तालीम सिंध ने वजीर आला को डायरेक्टर सेकेंडरी कराची शाहिद जमान का तबादला करके बदीन के इलाके टंडो बागों में हाई स्कूल का हेड मास्टर मुकर्रर करने की सिफारिश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने समरी पर दस्तखत करके महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स कराची फरनाज रियाज को डायरेक्टर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। जराए का कहना है कि महंगे दामों गैर मयारी फर्नीचर का मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के नोटिस में लाया गया है। महकमा तालीम के मुलव्विस तमाम किरदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। वजीर आला को अरसाल करदा समरी में डायरेक्टर सेकेंडरी मीरपुर खास दीदार वगन का तबादला करके उनको भी हेड मास्टर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। आजिज जमाली, सिटी 21। तालीमी दरसगाहें भी बरसात के पानी के सबब तालाब में तब्दील होने लगी हैं। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाक़या स्कूल गंदे पानी और कचरे से भर गया है। गंदगी और गलाजत के सबब तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान गिल से। जी नुमान, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि दरसगाहें भी बरसात के पानी के सबब तालाब में तब्दील होने लगी हैं। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाक़या स्कूल गंदे पानी और कचरे से भर गया है। गंदगी और गलाजत के सबब तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तालीमी दरसगाहें भी बरसात के पानी के सबब तालाब में तब्दील होने लगी हैं। अब आपको बताएं कि रेलवे का पहिया रवा दवा मगर रेलवे मजदूर के घर का पहिया रुक गया। महकमा रेलवे ने ताहाल मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं की हैं। टेक्निकल शेड स्टाफ एहतजाज के बाद वॉशिंग एरिया के मुलाजमीन ने भी एहतजाज कर दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। रेलवे के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं और टेक्निकल शेड स्टाफ के साथ साथ यहाँ जिस मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये यहाँ पर सर्विस स्टेशन है और यहाँ भी टेक्निकल मुलाजमीन जो है वो काम करते हैं। इनका ये बताना है तकरीबन 500 से 600 के लगभग मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको ताहाल तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। 15 तारीख को तनख्वाहें जो है वो जारी की जाती हैं लेकिन आज 23 तारीख हो गई, इन्हें तनख्वाहों का पता भी नहीं कि कब तक आएंगी और अभी तक किसी ने आगे दादरसी नहीं की, किसी ने आज तक बताया तक नहीं है कि आपकी तनख्वाहें जो हैं वो कब जारी की जाएंगी। मुलाजमीन से रापा एहतजाज हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे, जानेंगे कि क्या मुतालबात हैं। बताइएगा क्या मुतालबात हैं आप? हमारे मुतालबात ये है, जो हमारी ड्यू तनख्वाह की जो डेट है वो है 16 तारीख और अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। आज हमारे घरों में फाके पड़ रहे हैं, कोई हमें कर्ज देने के लिए, क्योंकि सबसे कम सैलरी जो है वो कैरेज स्टाफ की है, टेक्निकल स्टाफ की। अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली और बहुत परेशान हैं। इसीलिए आज ये बंदे सरापा एहतजाज हैं और हम चाहते हैं जो हमारे को फिल फोर तनख्वाह दी जाए, इन मजदूरों का जो मसाइल है वो हल किए जाएं। मजदूरों का मुतालबा है कि तनख्वाह दी जाए क्योंकि घरों में मेरा ख्याल है राशन के भी अब पैसे नहीं बचे। कुछ नहीं बचा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, वैसे इनकी जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा, उसकी तनख्वाह इतनी कलील है कि ये अपने 30 दिन के अखराजात अपनी उस तनख्वाह में से पूरे नहीं कर सकते। हर महीने के आखिर में बिल आखिर इनको कहीं ना कहीं से कोई कर्ज मांगना ही पड़ता है। और हमारी मतलब जो है कि ये भरपूर डिमांड है कि देखें, ये जो क्लास 4 स्टाफ है और ये जो टेक्निकल स्टाफ है, इसकी तनख्वाहें इंतहाई कम हैं। गुज़िश्ता 50 सालों में ना तो इनको अपग्रेड किया गया है, ना इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, ना इनको कोई नए अलाउंसेस जारी किए गए और बदकिस्मती के साथ ये सिर्फ पाकिस्तान रेलवे में ही हुआ। तो अगर रेलवे खुद भी जब ये बात जानती है कि वो इन मजदूरों के बहुत से हुकूक जो है वो दबा करके बैठी हुई है और उसका इस्तेहसाल उसने गुज़िश्ता 50 साल से जारी रखा हुआ है, तो कम अज़ कम इतनी आपके दिल में मतलब हमदर्दी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए कि ये कम तनख्वाह वाले जो मुलाजमीन हैं, कम अज़ कम तनख्वाहें इनको आप बर वक्त अदा कर सकें। कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें जो है वो दी जाए, ये इनका मुतालबा है क्योंकि बेशतर मुलाजमीन ऐसे हैं, इनमें से बेशतर क्या, ये जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्टर्स खड़े हैं ये वो लोग हैं जो महीने के एंड में कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज लेने वाला भी इनके घरों के दरवाजे बजाता है कि हमारा कर्ज लौटा दीजिए। कर्ज कहाँ से लौटाएंगे, तनख्वाहें ही नहीं मिल रही हैं। तो इनका ये बताना है कि गुज़िश्ता 5 से 6 माह से ये रिवायत बन गई है पाकिस्तान रेलवे की कि तनख्वाहें हमेशा लेट जो हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी।
शहर में मोटरसाइकिल चलाने और फरोख्त करने वालों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। नंबर प्लेट का एजाज़ ना होने से खरीदारों को चालान का सामना है। हमारे नुमाइंदा हबीब खान इस वक्त मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के नायब सदर अब्दुल्ला शारी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, कराची शहर में इस वक्त अगर बात करें तो मोटरसाइकिल सवारों की जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो कराची की जो पुलिस है उनकी जानिब से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो नंबर प्लेट्स का इजरा है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो कराची के नौजवान हैं, बिलखुसूस जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो इस वक्त परेशानी से दो चार है। क्या मुश्किलात दरपेश हैं, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के नायब सदर अब्दुल्ला शारी साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला शारी साहब, ये बताइएगा कि ये नंबर प्लेट का मामला बड़े तवील अरसे से चलता आ रहा है, इस वक्त क्या परेशानियां हैं, कितनी नंबर प्लेट्स का इजरा मुमकिन हो पा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। नंबर प्लेट मोटरसाइकिल या कार में साल में 1 से 2 दफ़ा इजरा होता है इसका। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये है कि इदारे का दूसरे इदारे से कोई राब्ता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने या एडिशनल आईजी साहब ने तो नोटिफिकेशन दे दिया कि जी नंबर प्लेट फैंसी होना या कोई और जो है वो काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल नंबर प्लेट ही मोटरसाइकिल या कार पर लगाई जाएगी। मगर हमारे यहाँ एक्साइज की जानिब से मोटरसाइकिल या कार को नंबर प्लेट दी ही नहीं जाती। साल में सिर्फ आप ये समझ लें कि 1000 या 1200 नंबर प्लेट आ जाती हैं और लाखों नंबर प्लेट कस्टमर को नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त आपके पास जो अभी आपने जो मोटरसाइकिल सेल करते हैं, तो कितनी मोटरसाइकिलों के आपके पास नंबर प्लेट आई होंगी पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो, और कितनी जो आपके पास जो ख़रीदार हैं वो आके नंबर प्लेट्स के हवाले से मुतालबा करते हैं? सर, अगर दिन में यहाँ पर तकरीबन 500 गाड़ी बिकती है तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 10 या 12 को भी नंबर प्लेट नहीं मिली है। बिल्कुल, अब्दुल्ला शारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट का इजरा है जो इदारे की जानिब से नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से सार्फिन और जो मोटरसाइकिल का कारोबार करने वाले जो मार्केट्स में अफराद हैं उनके दरमियान भी थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हो रही है, और जो ख़रीदार है वो मोटरसाइकिल की जो है वो जो नंबर प्लेट्स हैं उनका मुतालबा करते हैं, लेकिन इदारे की जानिब से इजरा ना होने के बायस यहाँ पर भी मुश्किलात पेश आती है। दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो उन मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर चालान करती है, भारी भरकम चालान होते हैं, जिसकी वजह से मजीद जो है वो परेशानियों का सामना है। तो सिर्फ यही मुतालबा है कि जो तमाम तर इदारे हैं और साथ ही साथ जो हुकूमत वो इस चीज़ पर। जी बहुत शुक्रिया हबीब इस तफसील का। शहर कायद में आज और कल बारिश की पेशगोई है। बारिशों का नया सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर कराची में आसमान पर बादलों के डेरे हैं। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर कायद में आज और कल बारिश की पेशगोई। बारिशों का नया सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर कराची में आसमान पर बादलों के डेरे, दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 80% है। मुल्क भर में बारिश और मौसम की ख़राबी की वजह से कराची से चलने वाली कुछ गाड़ियां ताख़ीर का बाइस हैं। ज़िक्रिया एक्सप्रेस 5:30 की बजाय रात को 12:30 पर रवाना होगी। खैबर मेल रात को 10:15 की बजाय रात को 11 बजे रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा कौन सी ट्रेनें कितनी ताख़ीर का शिकार रहेंगी? आदिया नाज से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को बता रहे हैं ट्रेन शेड्यूल जो है वो फिर मुतासर हुआ है। कराची से चलने वाली कुछ गाड़ियां ताख़ीर का बाइस हैं। ज़िक्रिया एक्सप्रेस है जो कि 5:30 बजे रात बजाय जो है अब वो 12:30 बजे रात को रवाना होगी। मुल्क भर में बारिश और मौसम की ख़राबी की वजह से कराची से चलने वाली कुछ गाड़ियाँ ताख़ीर का बाइस हैं। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा कौन सी ट्रेनें कितनी ताख़ीर का शिकार हैं? मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल है। बारिशों के पेश नज़र जो है वो मुताबिक ट्रेनें आज भी कराची से ताक़ीर से रवाना होंगी। कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जो कि कल मनसूख की गई थी, उनको आज जो है वो एडजस्ट किया जाएगा उनके मुसाफिरों को। जबकि ज़िक्रिया एक्सप्रेस के हवाले से बात करें तो जो 5:30 बजे यहाँ से चलना थी, वो रात को 12:30 बजे यहाँ से रवाना की जाएगी। खैबर मेल रात को 10:15 के बजाय रात को 11 बजे रवाना होगी। सक्खर एक्सप्रेस को भी रात को 11 की बजाय रात 2 बजे जो है वो रवाना किया जाएगा। दीगर ट्रेनों में कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, तेजगाम, बुलान मेल और पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑपरेशन को आज मुअत्तल किया गया है। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि कोशिश ये की जा रही है कि ट्रेन ऑपरेशन को जो है वो जल्द से जल्द मामूल पर लाया जा सके, और इस हवाले से ये कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया आदिया। बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। तो लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। जुनेजा कॉलोनी के मकीन भी वक्फे से बिजली की आंख मचोली से तंग आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। कराची वालों को लोड शेडिंग के जिन ने जकड़ लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। जुनेजो कॉलोनी और डिफेंस फेज व्यू में 3-3 घंटों की कई बार लोड शेडिंग
की जा रही है। लोड शेडिंग की अजियत से दो चार शहरियों का कहना है कि बिल बहुत आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली ना होने के बाइस रात जागकर गुजारनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक बेलगाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल ज्यादा आ रहे थे, बिजली की जरूरत है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। मेरा भाईजान 24 घंटे में 10 घंटा होता है, 14 घंटा गायब है, बिल तो डबल आ रहा है। कि इलेक्ट्रिक की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बिल लाते हैं बस दे देते हैं, बाकी इनको ये नहीं पता कि लाइट है या नहीं है। तो बहुत होता है, छोटा बच्चे वो रोते हैं, अजय सुबह काम के लिए बंदा जाता है, रात को थका हुआ, नींद फौरन नहीं है तो तकलीफ तो है। नाजमाबाद साइट एरिया PECHS सोसाइटी समेत दीगर इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर हैं, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजमाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि तकनीकी वजूहात पर बिजली की बंदिश को लोड शेडिंग में शामिल ना किया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। बिजली की लोड शेडिंग के बाद अब कुछ बात करें गैस बहरान की। तो शहर में गैस का संगीन बहरान थम ना सका, जिसके बायस रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन परेशान हैं। कश्मीर कॉलोनी के मकीन होटल से नाश्ता और खाना खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे हबीब खान की रिपोर्ट में। गैस बहरान कराची वालों के लिए दर्द सर बन गया। शहर में कई माह से जारी गैस का संगीन बहरान थम न सका। रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन ताहाल परेशानी का शिकार। कश्मीर कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि सुबह सवेरे घर में नाश्ता भी नहीं बन सकता, बाहर से खरीद कर खाना पड़ता है। महंगाई के दौर में होटल से खरीदारी करना मुश्किल है। गैस के बिल भेज दिए जाते हैं मगर शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। गैस का जो प्रॉब्लम है वो तो आपको पता है कि है ही इस इलाके के अंदर, तो जहाँ पानी का मसला है वहाँ गैस का मसला भी चल रहा है। सुई गैस वाले है या दूसरे कोई इदारे उनके कान पे जूं तक वो बिल भेजेंगे, डबल ट्रिपल करके बिल भेजेंगे, लेकिन वो मसले का हल नहीं करेंगे। आ ही नहीं रहा तो लोग परेशान हैं होटल से खाने से। ये होटल वाले 40-50 रुपए का पराठा दे रहे हैं, 60 रुपए की चाय दे रहे हैं, और गरीब आदमी कहाँ पूरी करेगा। तनख्वाह कम है और लोड ज़्यादा है लोगों पे। अब ज़्यादातर तो होटलों से ही ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, और महंगी है, कॉस्टली है। सुई सॉर्दर्न गैस कंपनी ने लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल करते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स को हफ्तावार गैस की फराहमी बंद की है। इसके बावजूद शहर में रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन को गैस की तरसील में बेहतरी न आ सकी। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में रेड लाइन बस ट्रांजिट प्रोजेक्ट के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के नुमाइंदों की शिरकत हुई। इजलास से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रेड लाइन बस मलिर हॉल्ट से रास्ता मौसमियात चरंगी नुमाइश तक जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत 503 मिलियन अमरीकी डॉलर और तकमील की मुद्दत 3 साल है। डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 9 पैसे का इजाफा। डॉलर की कीमत 217 हो गई है। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 9 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में 217 रुपये हो गई है। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। टैक्सों के बोझ और 7.5% आयत सेल्स टैक्स ने ताजिर बरादरी के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। ताजरों ने सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, कराची के ताजिर टैक्सों के बोझ और बिलखुसूस 7.5% जो सेल्स टैक्स ऐड किया गया है उसकी वजह से परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजिरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स। इनसे जानते हैं जो सेल्स टैक्स है उसकी वजह से ताजिर बरादरी क्यों परेशान है, क्या ताजिर बरादरी टैक्स देना नहीं चाहती, और इस सेल्स टैक्स के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कराची का ताजिर तो पहले दिन से टैक्स दे रहा है और देना चाहता है, लेकिन हुकूमत और दीगर जो इदारे हैं वो मिल के पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ताजिर इस हवाले से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने ये पहले ही कहा था, गुज़िश्ता दिनों भी ये बात हुई थी मिफ्ता इस्माइल साहब से, कि छोटा ताजिर किसी भी सूरत में सेल टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आता। जो शख्स सेल टैक्स के दायरे कार में नहीं आता तो उससे आप टैक्स कैसे लेंगे। इस हवाले से उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रात सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए 7.5% तक का जो टैक्स लगाया गया सेल टैक्स, उसको अंजुमन ताजिरान सिंध मुस्तरद करती है और ऐसे किसी फ़ैसले की तरफ हम उन्हें हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जावेद शम्स जिनका कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जो है वो सेल्स टैक्स ऐड किया गया है, जिसको ताजिरों ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना है कि जो छोटे ताजिर हैं वो सेल्स टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आते, जो छोटे ताजिर हैं वो पहले इनकम टैक्स दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो
टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे हैं और मुतालिका जो मिनिस्ट्री है वो ताजरों के साथ बैठे और इस मसले का हल निकाले ताकि तमाम तर जो इबाम है और जो टैक्सों से मुतालिक जो ताजरों को दरपेश मसाइल हैं। वसीम इफ्तिखार। मरदमशुमारी की मनसूखी मायूस कुन है। मोबाइल फ़ोन से मरदमशुमारी को आसान बनाया जा सकता है। मार्केट में हज़ारों की तादाद में टैबलेट मौजूद हैं। गुज़श्ता मुतनाज़ मरदमशुमारी काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर ताज हैदर का ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स को ख़त। वज़ीर का CCA के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। कहा ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स नई मरदमशुमारी के मुतालिक उबहाम को ख़त्म करे। ड्रैब की जानिब से भेजी गई 40 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी वफाकी वज़ारत सेहत ने मुस्तरद कर दी हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने एक बयान में कहना है कि हुकूमत सिंध के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। हमारे नुमाइंदे इरफान इसी जना हस्पताल कराची में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इरफान बताइएगा। ड्रैब की जानिब से वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल को समरी भेजी गई थी कि फौरी तौर पर जो अद्वियात है उसकी कीमतों के अंदर इजाफा किया जाए, लेकिन वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने समरी को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही ये कहा है कि किसी भी अद्वियात के ऊपर कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी क्योंकि महंगाई के इस दौर के अंदर लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में अद्वियात की कीमतें बढ़ाना लोगों के साथ इंतहाई नामुनासिब बात होगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियात हैं तिब के हवाले से वो फराहम की जाएँ ताकि ना सिर्फ ये कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को अद्वियात मैसर हों बल्कि जो दीगर सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाए। अद्वियात के हवाले से ड्रैब ने एक समरी जो है वो तैयार की थी और ये समरी गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल को भेजी गई थी, ताहम उन्होंने इस समरी को मुस्तरद कर दिया और साथ ही जो वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल उनका कहना है कि किसी भी सूरत में अद्वियात पे कीमतें भी बढ़ाई नहीं जाएंगी और साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि जो महकमा सेहत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जा सके ताकि जो गरीब। शुक्रिया इरफान, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। माई कराची गेम्स का आगाज सितंबर में होगा जिसमें शहर के नौजवान भरपूर हिस्सा लेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से जो इस वक्त सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर सैफ अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी महमूद बताइएगा। वालों के लिए खुशखबरी है कि माई कराची के सेक्रेटरीट का इफ्तिताह हो रहा है और कराची वालों को एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट मिलेगा जिसमें कि 30-35 से ज़्यादा खेल होंगे। इस वक्त हमारे साथ बल्दिया कराची के सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मौजूद हैं सैफ अब्बास। थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइए कि कराची वालों के लिए, नौजवानों के लिए क्या खुशखबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के ऊपर KMC ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिल के ये प्लान किया है माई कराची गेम्स के नाम से अपनी डायमंड जुबली एनिवर्सरी पे। तो इसमें कौन कौन से खेल होंगे और क्या तरीके का? देखिए इसमें 42 गेम्स हैं जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल है, उसके अलावा स्विमिंग है, जनाब टेबल टेनिस, बैडमिंटन है, दीगर गेम है, सीपक टाकरा है। आपको बहुत से ऐसे गेम्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, ठीक, लेकिन वो इसमें मौजूद हैं और 42 गेम्स हैं इसमें टोटल। अच्छा, ये वेन्यू कश्मीर रोड ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, ये शहर के मुख्तलिफ जगहों पर? शहर के मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ होगा। मसलन ख़वातीन के जो मुकाबले होंगे वो वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। क्रिकेट के मुकाबले कराची में मुख्तलिफ जो क्रिकेट ग्राउंड हैं KMC के उसमें होंगे। हॉकी के मुकाबले जो कराची में हॉकी के ग्राउंड हैं, फुटबॉल के मुकाबले जो तो इनका आगाज़ कब से होगा तकरीबन? देखिए ये इसका आगाज़ तो 14 अगस्त से पहले होना था, लेकिन क्योंकि बारिशें आ गई और बारिशों में की वजह से आउटडोर गेम्स हो नहीं सकते, तो फिर शहर में जो हालात हो गए बारिशों की वजह से, उसकी वजह से इसको एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और ये समझ लीजिए कि ये अब सितंबर के मिड में स्टार्ट हो जाएगा। तो सितंबर के मिड में कराची वालों की खबर ये है जैसा कि इन्होंने बताया कि 42 मुख्तलिफ खेल जो है मुकाबले होंगे और कराची के यंगस्टर उनके अंदर हिस्सा ले सकते हैं और एक सेहतमंद। जी बहुत शुक्रिया महमूद इस तफसील का। मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आइंदा माह किर्गिस्तान में मुनक्किद होगी। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी पाकिस्तान अब बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की और पाकिस्तान एक और बड़े इवेंट में हिस्सा लेने जा रहा है, एशिया कप जो किर्गिस्तान में होना है। इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर आमिरुल्लाह खान साहब से। आमिर साहब क्या तफसीलात हैं इसकी, कब जा रही टीम, कब है ये इवेंट और किस तरह सिलेक्शन हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे कवरेज के लिए बुलाया।
تو ہماری ٹیم پاکستان کی ہسٹری کی باڈی بلڈنگ کی ہسٹری کی سب سے بڑی ٹیم مسٹر ایشیا کھیلنے 1 سپٹمبر کو پاکستان سے ہم فلائی کریں گے. 2 سے 5 سپٹمبر تک بشکیک کرغزستان میں کھیلی جا رہی ہے مسٹر ایشیا کانٹیسٹ. کتنی امیدیں ہیں اور کتنی کیٹیگری میں حصہ لینا ہے پاکستانی تنسازوں کو؟ تیاری کیسی کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً ہم 1 سال سے اس کانٹیسٹ کی تیاری میں ہے. بہت زبردست ٹرائلز ہوئے, اس میں ایک بہترین ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے. میکسیمم لڑکے سندھ اور کراچی سے اس میں سلیکٹ ہیں, پنجاب سے بچے کھیل رہے ہیں, KPK سے کھیل رہے ہیں, ڈپارٹمنٹوں سے لڑکے آئے کھیل رہے ہیں. بڑے مین نام میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں. مسٹر پاکستان فدا حسین بلوچ اپنے پیک ٹاپ فارم میں ہے. 2021 کے کامران بلوچ بہترین فارم میں ہے. 4 ٹائم نیشنل چیمپئن عمیر وہ بھی کھیل رہے ہیں. ہمارے یہاں لوکل جو بچے اچھے گرو کر کے پورے 1 سال کی تیاری پہ آئے ہیں, اس میں سبھی ترین کھیل رہے ہیں. کیا امید کر رہے ہیں, کیسے رزلٹ آنے کی امید ہے؟ تیاری آپ بتا رہے ہیں اچھی ہو رہی ہے. تیاری بہت اچھی ہے, چونکہ جب آپ ایک پلان کر کے آتے ہو اور ایک اچھی ٹیم, آپ کی ٹرائلز اچھے ہوتے ہیں, پراپر ایک اچھی ٹیم بن جاتی ہے, انتظامی امور اچھے ہوتے ہیں, تو ایک ٹیم ویسی ایک اچھی ٹیم آ جاتی ہے. اور سپانسرز مل گئے ہیں, بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے سنا کہ عامر اللہ خان بتا رہے ہیں کہ بڑی لڑکوں نے محنت کی ہے, لڑکے بڑے تجربہ کار ہیں اور اچھے نتائج کی امید بھی ہے. بہت شکریہ جاوید.